Hello students, good morning. We are back with a new topic today. Effects of urbanization. हमने last urbanization देखा था, types देखे थे, उसका definition clear किया था. आज हम देखते हैं effects. उसमें generally two effects है, positive and negative. Positive को favorable effects भी पूछा जा सकता है, advantages पूछा जा सकता है, and negative को unfavorable effect and disadvantages पूछा जा सकता है, right? Negative effects को वो adversely affect भी बोल सकते हैं, adversely affecting, right? फर्स्ट पॉजिटिव में देखते हैं इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. अर्बनाइजेशन से सबसे पहले पॉजिटिव हुआ इंक्रीज इन और इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यानी क्या वो पहले क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रोड, कम्युनिकेशन हो सकता है, वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी ड्रेनेज फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटीज किसमें आ सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही अर्बनाइजेशन होगा तो वो एरिया या पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनकी डिमांड क्या बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा बढ़ेगी रिसोर्सेज के लिए. कौन सा रिसोर्स है? ट्रांसपोर्टेशन से लेके इंटरनेट फैसिलिटी से लेके कम्युनिकेशन से लेके सारी उनकी जो डिमांड है रिसोर्स की वो बढ़ेगी. तो वो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारी कंट्री की बढ़ेगी. सेकेंड है रिडक्शन इन पॉवर्टी. रिडक्शन इन poverty and unemployment are mutually interdependent. Due to urbanization, industry and services sector create large-scale employment in cities, which reduce the poverty. कैसे poverty reduce हो रही है? तो भाई moreover rural poor and unemployed who can come to the urban areas get employment according to their capabilities, which also leads to the reduction in poverty. Generally urbanization में क्या होता है? People come from village area or rural area and to settle down in a urban area. तो उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मेंटल, फिजिकल स्किल्स, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको काम मिल जाता है, तो उनकी अर्निंग बढ़ जाती है. तो ये पोवर्टी क्या होती है? धीरे धीरे कंट्री की कम होती है. थर्ड इज कल्चरल डेवलपमेंट. कल्चरल डेवलपमेंट में है in cities advanced educational facilities are available and through that an individual can attain all round development which improves the personality of individual and makes him a cultural individual of the society. हम क्या बोलते हैं? अर्बन एरियाज में आपको क्या मिलेगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट. कैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट? एजुकेशन फैसिलिटी जो है, एनवायरनमेंट जो है, कल्चरल जो है, मेंटालिटी है, सोशल रिचुअल्स है, वो क्या होते हैं? थोड़े मॉडर्न होते हैं. तो आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट भी मिल रहा है, इवन आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से डेवलप होती है और आप एक कल्चरल इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं. फोर्थ इज अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज. Health services you will get in urban area is very good because you will see the doctors which are there in a urban area are well qualified, well experienced, and they know how to treat these diseases and how to treat the patients. Where in a rural area, hospitals are generally government hospital, so people don't pay attention more over there. But here you will see urban area में क्या है? ultra modern health services है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स आपके लिए अवेलेबल हैं. सारे डिजीजेस का आपको क्या मिल सकता है? इलाज मिल सकता है. फिफ्थ इज सोशल इफेक्ट्स लाइक मॉडर्न थिंकिंग. थिंकिंग यहाँ पे सबकी कैसी है? मॉडर्न है. People won't even ask you where you are going, what you are doing, how you are feeling today, what's your plan today. But where if you are living in such a privileged area, like privileged of kind of privileged area of rural area, जहाँ पे आपसे सारे इंटरफेरेंस होते हैं लाइफ में. बट यहाँ पे क्या है? Modern thinking है. People of urban areas is modern because compared to the village cities have better education, cultural development, modern means of communication, which makes them quickly adapt themselves and to the modern world by the way of decency and dignity in the words. So they don't ask you lifestyle, thoughts, action, social rituals कैसे हैं? Modern है. Then है high standard of living. Standard of living कैसा है? बहुत हाई नहीं, but at least standard of living it is acceptable. इनकम ज़्यादा होगी अर्बन एरिया में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, परचेसिंग पावर भी आपका कैसा होगा? ज़्यादा अच्छा होगा. तो आपको अच्छे से स्टैंडर्डली हम अच्छा सा लाइवलीहुड मिल सकता है. नेगेटिव इफेक्ट्स में फर्स्ट है इनकम इनइक्वालिटीज. सबसे पहले नेगेटिव है इनकम इनइक्वालिटीज. उसमें देखते हैं
First negative effect of urbanization is income inequalities. On the other hand, in urban areas, there are intellectuals who are very highly educated entrepreneurs, business magnate, and whose income level are very high. And while on the other hand, there are poor laborers who are illiterate, who do not have any skill or expertise, who do not know anything except the physical labor, and hence their income are very low. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि people को कैसे income या salary दी जाती है on the basis of their physical and intellectuals और mental capability. तो laborers को generally बहुत कम पैसे मिलते हैं because उनके पास सिर्फ physical quality है, physically काम कर सकते हैं, but mentally जो होते हैं intellectually qualified होते हैं, managers हैं, entrepreneur हैं, businessmen हैं, तो वो ज़्यादा earn करते हैं. तो income inequality आपको urban area में दिखेगा. Second is a social inequality. Social inequalities. Social inequalities में देखते हैं are seen along with economic inequalities. Rich and the educated class have a modern thinking, while the uneducated poor class have a blunt and age-old thinking who can be exploited in the urban areas. यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिकली आपको ट्रीट करते हैं, आप पैसे वाले हैं, मोर रिचर यू आर, एजुकेटेड है तो मॉडर्न थिंकिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो ब्लंट या थिंकिंग आपकी कम होगी, तो उस हिसाब से आपको एक्सप्लॉइट करते हैं अर्बन एरिया में. थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग. स्लम एरियाज जो होते हैं, people coming to the cities from village are forced to live in the hutments and dirty slums. Dirty slums बोल सकते हैं हम, जैसे मुंबई में धारावी प्लेस इज नोन फॉर स्लम एरियाज. वैसे ही पीपल अगर विलेज एरिया से ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो दे गो एंड शिफ्ट टू द सच स्लम प्लेसेस. तो वो अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारे एरिया का स्लम एरिया बढ़ जाएगा. तो ये क्या होता है, दिस इज consist the labor class and their affordability is very low. labor class अगर आते हैं विलेज एरिया से यहाँ, तो वो ऐसे ही एरिया में रहते हैं जो हमारे सिटीज या टाउन को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा. देन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, रूल्स रेगुलेशन. उसमें है uncontrolled urbanization has led to the population explosion in urban areas, which result in serious problem. For example, per capita vehicle in cities is high and seen to be rising continuously, which creates a traffic problem. इसमें क्या होगा, population अगर बढ़ गया तो लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं. तो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सोशल सिक्योरिटीज़ वाले थे उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है. देन फिफ्थ इज अ क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो उनके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए भी डिफिकल्ट है. सो प्रॉब्लम अराइज लाइक ऑफ द वाटर और डिजीजेज ऑल्सो हो सकते हैं, क्योंकि पानी हमारे पास जो है वो कंट्री में मे बी मेजरली हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि 66% ऑफ आवर कंट्री ओनली हैव अ वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर. बाकी सारे क्या कर रहे हैं तो पता नहीं है कहाँ से पानी पी रहे हैं, और पानी वो कैसा है, अनफिल्ट्रेट पानी. क्या होता है उनसे डिजीजेज होते हैं, वाटरबॉर्न डिजीज है. देन सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ड्रेनेज फैसिलिटी का शॉर्टेज. सो ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल है. दे आर ओनली द नेगेटिव इफेक्ट्स. सिक्स्थ इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. पोल्यूशन बढ़ जाएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. So there is even the dirt and squirrel also creates further problem. For example, more than 50% of poor population suffer from skin and respiratory disease. यहाँ पे देख सकते हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं या पुअर एरिया में जो लो क्वालिटी एरिया में रहते हैं, उनसे क्या होता है, उनको स्किन डिजीजेस एंड रेस्पिरेटरी यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो सिचुएशन डिजीज है वो हो सकता है. राइट. तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा हुई, अर्बनाइजेशन हुआ, उससे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं. उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, मीजर्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है.
और हमारा सिलेबस पूरे साल का यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स एंड हैव टू सेंड मी बैक इन अ व्हाट्सएप, राइट।